So what do you think is happening us as a society right now? We do not even have time for ourselves. 8 hours is ideally suggested. पर उससे ज़्यादा सो सकते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है. कितने लोग हंसते हैं दिल खोल के. हा 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 करके सुबह योगा वाली आवाज आती है. मेरा ये प्लेइंग टाइम है. I'll go there. या this is my me time कि मैं फोन स्क्रॉल करूँ. This is not self love. सेल्फ कंट्रोल के बाद सेल्फ लव आता है या सेल्फ लव पहले आता है फिर सेल्फ कंट्रोल आता है? कुछ लोगों को अचीव ही नहीं हो रहा, स्टिल दे आर फीलिंग एम्प्टी. ऐसा साइकोलॉजिकल बैरियर क्यों हमारे दिमाग में होता है? उनका खालीपन तभी पूरा होगा हम वो ही देखते हैं सामने वाले में जो हम खुद होते हैं. A habit everyone should start today. Welcome back to the Collaborative Canvas podcast, where we explore the ideas, experiences, and perspectives shaping the way we live, work, and grow. In a world that is constantly asking us to do more, achieve more, and move faster, many people are quietly struggling with stress, anxiety, burnout, loneliness, and the pressure of keeping everything together. We live in the most connected era in human history, yet meaningful connections with ourselves and others often feel harder than ever. Today's conversation is about something that impacts us and all of us. Not just leaders, founders, or professionals, but every individual trying to navigate the demands of modern life while protecting their mental and emotional well-being. Joining me today is Natasha Kapoor. Natasha works at the intersection of mindfulness, emotional wellness, and creative expressions along with workplace well-being. Through her work as a mindfulness coach, art therapist, and corporate wellness practitioner, she helps individuals and organizations better understand stress, build emotional resilience, and create healthier relationships with themselves and those around them. In this episode, we'll explore why so many people feel overwhelmed despite having more opportunities than ever before, and the hidden impact of that stress and emotional suppressions, and how mindfulness can become a practical tool rather than just a buzzword, and why healing sometimes begin with something or as simple as slowing down and paying attention to the life which is going around. So whether you're feeling stressed by work, navigating personal challenges, or simply looking to understand yourself a little better, this conversation is for you. So welcome Natasha onto the show. Thank you so much for inviting me, Ankesh. Thank you so much to the Collaboration Canvas for making me visit here, and we'll talk about this in detail, I believe. Yes, Natasha, I've seen a few of the podcasts which are available on YouTube that you have spoken about, and I love the kind of experiences that you shared, with the experience you have also gained over a period of time while, teaching a lot many people. So to start with a bigger question, there's always a modern life problem these days, and we all go through that. There's a lot of stress. Everybody is busy. Everybody is so occupied in their life that they barely get time to, think around what they really need to do in future. So what do you think is happening us as a society right now? As a society, we all are rushing. हम लोग सब भाग रहे हैं, right? Don't you think we all are rushing towards one goal? जब वो मिल गया, then we'll move out to another goal. Then we look for another goal. आज मैंने एक SUV ले ली. I think नहीं यार, SUV तो ले लिया चलो. Now I want Mercedes. Mercedes हो गई. हाँ, 2-seater देखते हैं कुछ. So, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, एंड ये इच्छाएं जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम भागते रहेंगे, और जब तक हम भागते रहेंगे तो हम अपने संग कहाँ बैठ रहे हैं? How many of us actually sit with own thoughts in a day? Not only thoughts, वो भी छोड़ दो, अपने संग बैठना भी छोड़ दो, अपने फैमिली मेंबर के संग ही कितना बैठ जाते हैं? We're just running. पैसा कमाना है, नाम कमाना है, बट खुद के लिए या परिवार के लिए या फैमिली के लिए क्या है? वी हैव नथिंग. वी डू नॉट इवन हैव टाइम फॉर आवरसेल्व्स. सुबह हम ब्रश भी करेंगे, आधी दुनिया तो स्क्रॉल करते हुए करती है, राइट? यू आर ईटिंग ब्रेकफास्ट विद द फैमिली ऑन अ डाइनिंग टेबल, बट एवरीबडी हैज देयर ओन डिवाइस ऑन द साइड एंड खा रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं. दिस फिंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज. या द पॉइंट इज कि जब स्ट्रेस आप पे हावी होता है ना, कि हमें एक्चुअली इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है, अपने परिवार को लेके चलना है, उसको पैसे देने हैं, और दिन में सिर्फ 24 ही घंटे होता है,
तो आई थिंक आई वाज हियरिंग समथिंग अबाउट कि आपके पास जो अपना टाइम होता है साथ बैठने का, उस दौरान तो आप फोन उठाते हैं बिल्कुल। और आप सोचते हैं चल थोड़ा सा ना माइंड रिलैक्स हो जाएगा, मैं कुछ और स्क्रॉल कर लेता हूँ, कुछ अच्छे से शॉर्ट्स देख लेता हूँ, रील्स देख लेता हूँ। अब मुझे लगता है कहीं ना वो 1 घंटा या 10 मिनट आप अपने वाले असाइन भी करते हैं ना, तो होता नहीं है, फिर इट गोज लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो अब मुझे 10:30 बजे नींद आ रही है, लेकिन दिमाग में चल रहा है यार पूरी तरह से तो नहीं आ रही, चल एक बार शॉर्ट ही देख लेता हूँ, और फिर पता चला अब 2 बजे नींद आ रही है। सो आई किल्ड माई 4 hours राइट देयर इन दैटसेल्फ। हाउ कैन आई ओवरकम दोस कि यार मुझे नहीं है तो नहीं है, मैं मन को कैसे बनाऊं अपने। पहले आप मुझे बताओ, जब आप छोटे थे, नानी दादी के घर या कहीं भी जाते होगे 2 महीनों की छुट्टियों में, गर्मियों में, क्या करते थे होमवर्क के अलावा? ताशा उस समय इतनी फिजिकल एक्टिविटीज होती थी ना, हम छत पे खेल रहे हैं, हम दोस्तों के साथ सुबह 4 बजे उठ के जा रहे हैं खेलने, फिर शाम को इधर से उधर दौड़ रहे हैं, घर भी बड़े होते थे, कूलर में पानी भरना और पता नहीं क्या क्या काम होते थे। सोने के पहले क्या करते थे? तो फोन तो था ही नहीं। हाँ, कुछ सोचते थे और सोचते सोचते सो जाते थे, है ना? या कहानी सुनते थे, कोई सी नानी ने, दादी ने, मम्मी ने, किसी ने कहानी सुना दी। हाँ वो तो खैर काफी पुरानी बात होगी, लेकिन जैसे आप बड़े होते हैं और आप कॉलेज ग्रेजुएट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, देन वी पिक अप अ बुक एंड रीड। हाँ मोस्टली ऐसे ही होता है। मोस्टली मतलब कहानी दादी नानी ने सुनाई, वो स्टेज निकल गई तो वो कहती थी बेटा बुक उठाओ और किताब पढ़ो। हाउ मेनी ऑफ अस डू इट? नहीं करते। आज तो कोई भी नहीं। उसके लिए भी हम किंडल ढूंढते हैं, है ना? So this device, many mental health people, doctors have already talked about the blue light in this will not make you sleep. It will not let you go to a theta state or a state of relaxation. It will keep you only into awake state. And उसके बाद बॉडी के एग्जॉस्ट होने के बाद भी एक टाइम पीरियड होता है जिसमें यू फील स्लीपी। यू नो, अगर आपकी बॉडी का एक बॉडी क्लॉक सेटल्ड है 10 o'clock, 11 o'clock या 9 o'clock, you'll feel sleepy at that specific time. अगर वो टाइम निकल जाएगा, post that बॉडी को कमांड अलग चली गई है। इट्स लाइक अ सिस्टम। जब वो कमांड अलग चली गई है तो वो उस टाइम के बाद नहीं सोएगी। इट वुड नीड अगेन दैट काइंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन कि नहीं तुम्हें सोना है, बट तब तो मेरे पास फोन है, तब तो स्क्रॉलिंग चल रही है। हाउ विल यू स्लीप? एंड स्लीप इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। 8 hours इज आइडियली सजेस्टेड, बट उससे ज्यादा सो सकते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। उतनी नींद हो कहाँ रही है आज की डेट में? 4 घंटे भी नहीं होती है, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज हम लोग रात को ही तो हमें टाइम मिलता है जिंदगी में। जब सारे दिन की थकान के बाद रात को टाइम मिलता है तो हमें लगता है ये तो मी टाइम है। मी टाइम मीन्स I'll watch a movie, I'll watch a series, I'll take time out for my own style, own genre के लिए टाइम निकालूंगा या निकालूंगी। या we think कि चल यार दुनिया में क्या हो रहा है, लेट्स स्क्रॉल। कितने लोग एक्चुअली न्यूज भी पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर है ना बंद हो गए अब तो। एक्चुअली जिसके घर में न्यूज़पेपर आता भी होगा तो वो किसी और काम के लिए यूज होता होगा, जस्ट टू पुट इट इन द शेल्व्स, आई बिलीव। आई एम श्योर राइट? तो हम न्यूज भी नहीं पढ़ते। हमें सिर्फ वो न्यूज का फॉर्मेट भी या तो व्हाट्सएप से पता चलता है या इंस्टाग्राम से पता चलता है या एनी अदर सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाटएवर वी आर टॉकिंग अबाउट। वी डू नॉट हैव, I mean, we have left this habit of reading. Why? I mean, my suggestion to people is, why don't you pick up a छोटू सा book and start reading it? Somebody gave me a suggestion as well long back. उन्होंने कहा था कि मैंने कहा मेरे से नहीं होती है। मतलब एक टाइम था, हमारे टाइम पे वो नंदन बुक आती थी, कार्टून वाली। एग्जैक्टली। आई यूज्ड टू रीड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। चंपक, नंदन। जैसे मॉम्स के लिए भी आती थी, तो लास्ट में फिर वो चाचा चौधरी का एक पूरा कॉलम होता था, वी यूज्ड टू रीड दैट। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि बुक रीडिंग हैज गॉन इन द वेन। तो रीड कॉमिक्स, read you remember there was this book Reader Digest which has a column which talks about only jokes. हाँ, आज की पेपर में भी होता था। हंसते भी कितना है, कितने लोग हंसते हैं दिल खोल के, हा 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 करके। सुबह योगा वाली आवाज आती होगी, दिल से हंसने की आवाज नहीं आती होगी। ऐसे शोज बहुत हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस भी आ गए हैं, लोग वहां पे भी जाते हैं, दे स्पेयर सम टाइम आउट। Read and visualize. We do not imagination is died down because we do not give stimulation to our thought process and visualization. We do not give our brain a food for thought. कि हम रीड करके उस कॉमिक को, उस कॉमिक स्टेटमेंट को क्या मैं विजुअलाइज कर रही हूँ? चाचा चौधरी और लंबू को मैं विजुअलाइज कर पा रही हूँ कि मेरे लिए लंबू कुछ और है, आपके लिए लंबू कुछ और है। आपके लिए चाचा चौधरी कुड बी अ टॉलर पर्सन, मेरे लिए चाचा चौधरी कुड बी अ शॉर्टर पर्सन। Am I opening my brain? No.
सोने के पहले छोटी सी भी एक कहानी पढ़ लो, 4 पेज की कहानी ना भी पढ़ो, एक छोटा पैराग्राफ पढ़ लो, वो भी ना पढ़ो. Give a habit to yourself or anybody, like just pick up 2 things, 2 words और उनके मीनिंग ही पढ़ लो. यूजुअली स्कूल्स में कहा जाता था या पेरेंट्स बोलते हैं कि 2 वर्ड डेली पढ़ोगे तो वोकैबुलरी भी बेटर होएगी, राइट? वो तो टाइम चला गया मुझे frankly लग रहा है. speaking, recently there's a group wherein we all do chanting together, so Lalita Sahasranam chanting, and it is a very difficult text to understand, and it is a rahasya text, right? And it's a Sanskrit name, 1000 names of Lalita Ma. Okay. And she's one of the 10 Mahavidyas, very powerful. And Rahasyamay, when I'm saying, it's more of a, it has everything. She's the world, actually. When I talk about her, I just see she's the world, she's the creator, she's everything. Okay. So to understand that, one of the fellow chanting members said कि भाई मैं पूरा नहीं पढ़ सकता संस्कृत इतना, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं समझ पाऊंगा. Even the text guided by this book of Oshiju, right? He's written पूरा मत पढ़ो. Every day माँ के 2 नाम पढ़ो, 3 नाम पढ़ो और उसका मतलब समझो. So start slow. So you go bigger. It's a Kaizen. Kaizen means a Japanese technique where you take baby steps every day towards your goal, but you reach towards your goal one day with the hope that you are in a learning process. So pick up one thing daily. I'm not pushing to read. You can just sit before sleeping. Don't touch your gadget. Just write few affirmations. लेकिन आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ. I mean, the thing which I was talking about कि somebody told me कि सिर्फ एक पेज पढ़ो. हाँ. अब I am somebody who would read that page और उसके बाद फिर वो सोचना शुरू करेगा. और जब वो सोचना शुरू करेगा तो उसके दिमाग में आएगा कि ये कहानी शायद फोन पे भी कहीं देखी है. एंड इमीडिएटली वो फोन पिक करेगा. तभी फोन अपने से दूर रख के सोना चाहिए. दो फ्रैंकली इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि अलार्म भी इसी में होता है, सब कुछ इसी में होता है. बट माई स्टिल अ वेरी हम्बल सजेशन, बिकॉज इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं. सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है. सेल्फ लव इम्बाइब नहीं करेंगे तो हम बस भागते रहेंगे. और दैट इज़ वन पार्ट वेर इन we have to have that realization on our own कि अब phone नहीं touch करना है. You know, your phone gives this data that how many hours you have used it in a day, in a week, right? Yep. एक self realization वहाँ भी तो आती है. कितने लोग चेक करते हैं? हाँ, honestly मैंने ना अभी you made a very valid point. मैंने कई दिनों से देखा कि शायद मैं Instagram पे कुछ ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ. So I started realizing कि मुझे थोड़ा सा इसे कट डाउन करना. मतलब सब जगह पे मेरे 2 चीज़ें सबसे हाई पे रहती हैं. एक Instagram, एक लिंक्डइन और एक इंस्टाग्राम, यूट्यूब. ये सबसे ज्यादा टॉप पे रहती हैं. फिर आई स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग कि क्यों रहती हैं. तो इंस्टाग्राम पे तो मैं इतना टाइम भी नहीं दे रहा कि जहाँ पे मेरे वीडियो इतने रेगुलर पोस्ट हो रहे हैं वो मैं भी नहीं कर रहा, वो कोई और कर रहा है. और यूट्यूब ऑफ कोर्स मैं पूरे दिन रहता हूँ ये देखने के लिए कि वो उसकी मैट्रिक्स कैसे आ रही है. और लिंक्डइन तो आई एम लाइक ऑलवेज. इंस्टाग्राम मेरा क्यों बढ़ रहा है? देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इंस्टाग्राम पे ना वो व्हेन आई एम कनेक्टिंग माई थॉट्स विद व्हाट आई रेड, देन eventually there's a book I was reading, How to Talk to People Anyways. अब उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और जब आप उन एग्जाम्पल्स को देखते हो तो आप सोचते हैं ये शायद मैंने किसी पॉडकास्ट पे भी सुना था. अब आपने पहला पॉडकास्ट ढूंढना शुरू किया और उसकी एक क्लिप आपको मिली और जैसे आपने क्लिप को आगे स्क्रॉल किया तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये तो एल्गोरिथम है, इसको तो समझ में आ गया ना मैं क्या देख रहा हूँ. तो अब ये मुझे कुछ फॉलो ऐसा दिखाएगा. बट 2-3 और फिर वो ट्रेंड चेंज. अब वो ट्रेंड चेंज तो वो कहीं और जा रहा है और मैं उसके साथ जा रहा हूँ. तो अब टेक्निकली व्हाट आई एम ब्रिंगिंग माय सेल्फ डाउन टू कि पूरे दिन का स्ट्रेस था मेरा जो मैं बुक पढ़ के निकालना चाहता था, लेकिन फिर मैं रीडायरेक्ट हो गया. तो मैंने एक तो अपना डिसिप्लिन तोड़ा. दूसरा आई थिंक मैंने एक रूल बुक बनाई थी, खैर वो भी मैंने तोड़ दी. लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने टाइम तो बर्बाद कर दिया है और मेरा स्ट्रेस भी ओवरकम नहीं हुआ है. और as somebody who really wanted to fix things up, how do you ensure कि वो step 1, step 2, step 3 ले? क्योंकि mindfulness is not that easy. Controlling your mind is, I mean, I've seen a lot of people, नहीं हो पाता. आप 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, फिर आपको डिसिप्लिन टूट जाता है. एक बहुत सिंपल सा टूल बताती हूँ. सेल्फ रियलाइजेशन देखो सबसे इम्पोर्टेंट है. सेल्फ लव नहीं होगा तो सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेप तक तो हम जाएंगे ही नहीं. सेल्फ लव को पीपल ट्रीटेड एज ओके सैलून चले गए, थोड़ा गेटअप हो गए, तैयार हो गए, या ओके आई विल गो
मेरा ये प्लेइंग टाइम है, आई विल गो देयर, या दिस इज माय मी टाइम कि मैं फोन स्क्रॉल कर लूं. दिस इज नॉट सेल्फ लव. सॉरी, सेल्फ लव इज discipline. When you're disciplined, you know how to plan your things. You know my body needs what. First thing in this world, सबसे पहले क्या होता है, ये सूक्ष्म शरीर, ये बॉडी. अगर मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती, एंड इस बॉडी के अंदर इमोशनल, मेंटल सारा ही वेलबींग है. फिजिकल वेलबींग तो है ही. तो फॉर फिजिकल वेलबींग वी नीड टू हैव वन फिजिकल एक्टिविटी डेली. For the physical well-being, we need to really take care of what kind of food we are taking inside us. If you'll eat heavy, you will feel disturbed while sleeping at night. You will eat late, your body will backfire. लेकिन Natasha, there are so many people who don't even care about that. वो कहते हैं मैं रात में दही, मुझे मना किया, मतलब मैं सुनता हूँ दही नहीं खाना चाहिए, खीरा नहीं खाना चाहिए, और लोग खा रहे हैं. अब खा रहे हैं बिकॉज ये है ना सेल्फ कंट्रोल. हाँ, तो यही तो है अब डिसिप्लिन. सेल्फ कंट्रोल के बाद सेल्फ लव आता है, या सेल्फ लव पहले आता है फिर सेल्फ कंट्रोल आता है? सेल्फ लव आएगा फिर ही तो कंट्रोल आएगा. क्योंकि आपको रियलाइजेशन होना चाहिए, यार मुझे मेरी बॉडी फिट चाहिए. मैं आपको फ्रैंकली एग्जांपल देती हूँ. मैं एक दिन अगर कूड़ा खा लूँ, मतलब कूड़ा से मीन्स जंक खा लूँ मैं उस दिन. सी, यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, यू कांट अवॉइड, यू कांट बी कंप्लीटली दिस. दो आई प्रेफर 100% थिंग्स आई शुड कुक एट होम. मैं जंक भी खा रही हूँ तो मैं घर में बना के खाऊं, राइट. बट अगेन नेक्स्ट डे I try to balance my body. मुझे लगता है कि नहीं, there's some disturbance. Let me just balance my body. Go on a water or a fruit kind of a day. Go on a khichdi diet. Go on something wherein you can balance your body. But मुझे एक realization तो है ना, because I love my body. I don't want to go and just be in the hospital and spend my whole money in the medicines. Right? ये एक तो self realization है यार, मैं पैसे कमा रही हूँ. I would prefer to choose to experience through different mediums, to travel, to my other things, but why to spend it in medicine? जैसा जो आप बोल रहे हो ना, आई मीन टेक्निकली बंदों को अगर माइंडफुलनेस समझना भी होगा तो इट्स अ हर्क्यूलिन टास्क कि ये सारी चीजों को मुझे अपने दिनचर्या में उतारना है. अब वो ऑलरेडी बर्न आउट हैं, वो ऑलरेडी एक नॉर्मल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं. How do they cope from that and get that thing into discipline? See, first, you need to really understand कि stress और burnout are two different things. So stress is जब एक हमें पता है यार हम थक गए हैं, बस अब मेरा ब्रेन बंद हो गया है, मुझसे कुछ नहीं हो. And then you think and you feel आज ये भी काम था, ये भी काम था, ये भी काम था. तो number one thing for mindfulness, what I always tell people is stop doing multitasking, which is being taught to us when we were tiny, which is being expected by every boss in the organization, which an entrepreneur will always do, right? Because money चाहिए. But multitasking की एक simple सी activity बताती हूँ. When you say ABCD, पूरा Z तक बोलेंगे. Easy? 1, 2, 3, 100, easy. Now A1, B2, do it. नहीं हो पाएगा. A1, B2, C3, D4, E5, F6 अब अटकना शुरू हो जाएगा. हो गया ना? हाँ. तो आपका ब्रेन दो टेंजेंट पे चल रहा है. बट ट्रेन भी तो नहीं हुआ ना उसके लिए. हम कितना भी ट्रेन कर लें, कहीं ना कहीं जाके यू विल स्टार्ट थिंकिंग टुवर्ड्स इट. NLP में people do training, right? Exactly. But you use your active brain to think at that moment to club it. Correct. That's the technique, Exactly. right? Eventually, you're stressing your brain Correct. to do that. Is your brain ideally made to do two things together? No, it will go into fight and flight mode. वो बोलेगा कि नहीं अभी मुझे और एक्टिव होना है. मेरे इट विल स्टार्ट कमिंग ऑन माई बॉडी पार्ट. किसी की टांग हिलने लगेगी, किसी का स्ट्रेस होने लगेगा, कोई हाथ हिलने लगेगा, कोई सिगरेट जला लेगा, कोई कुछ कर लेगा. बिकॉज मल्टीटास्किंग इज एक्चुअली नॉट मेंट टू बी डन. बट व्हेन पीपल एक्चुअली गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम, देयर लाइक वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स हु कैन एक्चुअली डू दैट. तो बट उनसे भी इंस्पायर हो जाते हैं ना कि नहीं मुझे भी करना है. तो वो भी तो एक तरह से बर्नआउट ही हो रहे हैं ना उस केस में. बर्नआउट का साइंस अलग है. पहले तो मैं अभी स्ट्रेस की ही बात कर रही हूँ. एज इन हाँ, मतलब वो भी तो स्ट्रेस ही है ना उनका कि यार ओ ये तो दोनों हाथ से भी लिख लेता है. बर्नआउट में तो मेरा ब्रेन थक गया है. बर्नआउट में मेरी बॉडी थक जाएगी, हताश हो जाएगी, फिजिकल सिम्टम्स आने लगेंगे, पेन फील होने लगेंगे, डिजीज बॉडी आने लगेगी. दैट इज लाइक बर्नआउट. माई बॉडी हैज गिवन अप बिकॉज आई हैव नॉट हर्ड. सुना ही नहीं जब मेरी बॉडी ने साइंस दिए थे.
मैंने मतलब वो कहते हैं ना लिसन टू योर बॉडी, नहीं सुना. आप योगा आसन करो, आप जिम करो, इंस्ट्रक्टर हमेशा ये कहेगा लिसन टू योर बॉडी. योर बॉडी विल स्टार्ट गिविंग यू साइंस कि आज इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है या आज इससे ज्यादा वेट नहीं उठाना है. तो लिसन टू योर बॉडी. जब हम वो नहीं करते हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल सिचुएशंस, वी स्टिल कीप ऑन वर्किंग और वी स्टिल कीप ऑन एक्सर्टिंग. चलो यार आज ऑफिस के बाद ना काम तो कर लिया है, दोस्तों ने बोला पार्टी करेंगे, तो काम अब आप कर रहे हो 8 बजे तक ऑफिस में, दोस्तों ने बोला पार्टी करेंगे. बॉडी की कैपेसिटी है रात को 2 बजे तक जागने की या इतना थकने के बाद अल्कोहल लेने की. मैं उस पे भी आने वाला था. अल्कोहल कि मुझे नींद आ जाएगी. ऐसा नहीं होता. हाँ, बिल्कुल नहीं होता. अल्कोहल आपके ब्रेन को शट डाउन करती है. इट वोंट रिलैक्स. इट डजंट. रिलैक्स करना है तो B12 और मैग्नीशियम लो ना यार. इट डजंट. वो फिर वो आपको अगर आपने ओवरटेक कर लिया तो फिर वो वॉमिटिंग की फीलिंग, क्यों? क्योंकि बॉडी ने रेस्टलेस की फीलिंग, You're saying the सुबह right. सर में दर्द. बिल्कुल. Your body was not ready for that. Your body उसको बैकफायर जब करेगी तो वो निकलेगा ना बॉडी से, या हेडेक होगा. हेडेक होने का भी एक डिफरेंट रीजन है. इट्स अ वेरी बिग टॉपिक बिहाइंड दैट बिकॉज इट एक्चुअली हिट्स हियर योर सस्तनाम. तो इट खैर वो that is a very alcohol is a very big term to talk about sometime. The point is कि we're not even getting into those discussions. The Yes. point is कि people find ways to relax their bodies, but not the right way. Not the It's right. always the wrong way. See, because environment. So कहीं ना कहीं आपको अपना environment choose करना पड़ता है. That is what is my free will is. I have to choose my friends. I have to choose my circle. I have to. There self-love and discipline comes. Okay, if I say I am a kind of a brought-up person in my family wherein I belong to a Rajput family. My mother is a Kayast. I was a Kayast. And in my family, खाना पीना बचपन से चलता था. And now in what field I am is completely part ways, right? So खाना पीना जब बचपन से चलता था तो even नवरात्रों में दुर्गा माँ की जोत पे अल्कोहल एज अ धार चढ़ती है एंड नॉनवेज का भोग लगता है आफ्टर अष्टमी पूजा. ओके. एंड माय फादर इज अ राजपूत, तो डेफिनेटली खाना पीना तो वो बच्चा छोटा होता है, उसका गला खराब होता है, कहते ब्रांडी दे दो नमक डाल के ठीक हो जाएगा. सो आई हैव सीन एंड डन एवरीथिंग इन माय लाइफ क्वाइट अर्ली एज, नॉट गॉन आउटसाइड. ओके. मतलब अगर मेरे दोस्त भी मुझे आज बोले तो कहेंगे इसने खिलाना पिलाना स्टार्ट कराया होगा, तो वो मुझे बददुआ देते हैं एंड वो कहते हैं कि अब नाउ 360 डिग्री शी हैज ट्रांसफॉर्म्ड. बट दैट वाज माय चॉइस. आई स्टिल सिट विद देम. I take a green tea mug. I still sit with them. I take a non-alcoholic beverage. But that was your choice. I think that's Because a very I love big my statement. हाँ, which is what changes you the first. मतलब पहली पड़ाव ही वही है. My body started giving back. And you know what? Alcohol, why I said food habits. It's very important. Sleep, very important. Because first ये सूक्ष्म शरीर की requirements पूरी करनी है मुझे. Physical workout to keep me active. मैं एक्टिव नहीं हूँ तो 4 दिन में ये जॉइंट्स हमारे जवाब दे देते हैं. राइट? तो फिजिकल वर्कआउट, फूड, स्लीप, प्रॉपर रेस्ट. अब मैंने पार्टी करी, जॉब करा, काम करना मेरा फर्ज है, कर्म के लिए तो आई हूँ. काम नहीं करूंगी चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, कुछ भी हो, आई कैन नॉट सर्वाइव. दैट्स अ बेसिक नीड. बट आई नीड टू चूज. एम आई अ पर्सन हु इज वर्किंग हियर जस्ट टू शो, or am I productive? Productivity means I am doing one task at a time. तो मैं उसको अच्छे से करके I can move on to another one. I'll come to that. Okay. तो मैं एक नया दिन शुरू करने वाला हूँ कल. और उस नए दिन में के लिए मैं प्रिपेयर कई टाइम से अपने आप को कर रहा हूँ. रोज रात में बैठता हूँ, सोचता हूँ कि ऐसे करूंगा, अगला दिन शुरू करूंगा, नहीं होता है. फिर अगला दिन सोचता हूँ, फिर रात भर सोचता हूँ. The overthinking syndrome has become an epidemic for me right now. रोज ही सोच रहा हूँ कि आज तो यार नहीं यार मैंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया, और यार मैंने फोन खोला ही क्यों यार. मुझे पता है ना ये फोन डिस्टर्बिंग है. मैंने सुबह 2 पन्ने बुक के पढ़ लिए तो मुझे वो 2 पन्ने और पढ़ने चाहिए थे. एंड देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू एक्चुअली लाइंड अप. बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप रात में बैठते हैं और सोचते हैं और फिर आप अगले दिन फिर से वही विशियस साइकिल में चलने लगते हैं, तो आप उस चीज को कैसे कंट्रोल करें, और अगले दिन जब आप शुरू कर रहे हैं तो जो आपने एक्चुअली सोचा है उसको एग्जीक्यूट कैसे करें. ओके.
सो पहले तो ये जो थॉट है ना कंट्रोल का, ये जो वर्ड है, मुझे ये निकाल देना है. इफ आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ, तो मतलब मुझे तो अपने इस बॉडी पे, अपने माइंड पे कोई हक ही नहीं है ना रहने का. बट नताशा, वो कहते हैं ना कि आप when the control is definitely very harsh word, but कंट्रोल का मतलब ये हुआ है कि आपको ना एकदम वो मेजर वाला रोल निभाना है कि यार तू अगर ये आज 100 मीटर नहीं दौड़ेगा ना तो तेरे सोटे पड़ेंगे. वो वाला फंडा होना चाहिए कंट्रोल. Okay, so there are two things to this. Number one, I know this is happening. I can identify. Identify is a very good thing that you know that you can identify. At least first step हमने overcome कर लिया. I am still very confident कि मैं second step तक पहुंच जाऊंगी. एक दिन नहीं, but consistency लाने में मुझे समय लगेगा. तो consistency लाने के लिए very small tip is मत पढ़ो पूरा, मत करो, वर्कआउट के लिए मत जाओ, बट पूरे दिन में क्या हुआ सोने के पहले थोड़ा सा लिख लो. वहां आपकी घंटी बज जाएगी. आज मैंने क्या किया. Going out of the way, but it becomes your personal diary. Yeah. और वो आपके लिए भी आगे चल के खतरनाक बन जाती No, है. personal diaries always help. It always helps. Don't keep it if you don't want to keep it. Destroy it later. Or whatever you write, I always tell it to my clients also. तुम्हें confidence नहीं है, मैं घर में कहीं रख सकती हूँ या रख. Majorly people have, youngsters have, females, married women. The point is कि जैसे हम लोग ना अपना टास्क भी करते हैं ना, तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी तो चलो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं. इससे पहले भी जब मैं आपको लिंक्डइन पे मैंने आपको अप्रोच किया था, तो ना वो टास्क भी मैंने वहां पे उसी समय लिखा कि आई अप्रोच नताशा. तो अब मुझे ये पता है कि इसके बाद का स्टेप क्या है. इसके बाद का स्टेप है कि मुझे नताशा के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, रिसर्च करना है. तो अगले दिन जब मैं वो खोलता हूँ कि अरे मैंने कल उन्हें भेजा था, नाउ द टाइम बिकम्स द एसेंस. द डिले आई विल मेक इन दीज अरेंजमेंट्स विल डिले द एंटायर शूट, और फिर वो लॉन्च भी बहुत लेट होगा. हो सकता है तब तक चीजें बदल जाएं. True. और वी आर स्टिल इन द सेम एरा कि यार अभी मुझे भेजना है. तो नेक्स्ट डे आई वर्क ऑन द क्वेश्चंस. मैंने आपको फिर वो भेजे, फिर वी फॉलोड अप ऑन कपल ऑफ थिंग्स. सो एवरी सिंगल टास्क, अब ये पॉडकास्ट था बट रेगुलर वे में, व्हेन यू डू 9 to 5 जॉब, आपके बॉस आपके सर पे खड़े हुए हैं, ये करो. अभी फिर आई एम गोइंग बैक टू मल्टीटास्किंग. फिर आपका एक अलग स्ट्रेस आया, फिर एक अलग स्ट्रेस आया, एक डिलीवरी का स्ट्रेस आया, घर से फोन आ रहा है, भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. एक आके देखो, आदमी इतना उकता जाता है कि पूरे दिन में अगर वो सारी चीजों को एक बार लिख के फिर से पढ़ना शुरू करेगा, उसे लगेगा यार मेरे साथ होता है. 16-17 आइटम एक दिन में आ जाते हैं और फिर पता चलता है कि अगले दिन सिर्फ 4 या 5 ही हुए, वो 16-17 कैरी फॉरवर्ड हो गए. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. You still did those 5. Pat on your back. Appreciate yourself. Do not demean yourself. You did 16 में से 5 करे ना, कोई बात नहीं. उस 5 के लिए भी pat on your back. It is good. You know what? I realized with time, with my journey, corporate journey, everything. So मैं पहले लिखती नहीं थी. There was one boss of mine. She taught कि नताशा तेरे को इतने सारे काम है. मैं मतलब when I approached her, she said, क्या हुआ? I said, मैम भूल गई. क्यों भूल गई? मैम सब मिक्स हो गया. क्यों मिक्स हो गया? You have not written. I said, no. Make it a habit of writing. It's my personal experience, Ankesh, when I'm saying this. Multitask मैं अभी भी कर रही थी. But to break it down, I've started writing it. If I have to talk to a salesperson, I'll write ये टीम को बात करनी है. If I have to talk to a partner, I'll write मुझे इस पार्टनर को अप्रोच करना है. You have to plan a workshop. I'll write ये करना है. Then डेट डाल के आज के कितने काम है, या रात को अगर मैं बैठी हूँ आज कि नताशा ये कल काम थे. For that matter, यहाँ आने के पहले I had my rituals, I had my things to do. I knew my husband had to go. I have to plan house. My daughter is back home. So many things to do. As a female, as a person, you have your hands everywhere. Correct. Frankly, correct. ठीक है. So you have to manage everything. You have Yep. your pets, food, help, ये वो सब कुछ. बट कहीं तो बैठ के मुझे प्लान करना पड़ेगा ना. मैं कह रही हूँ आप सोने के पहले कर लो तो बेस्ट है. वॉशरूम में तो लोग फोन लेके जाते हैं, वहीं बैठ के प्लान कर लो यार. सबसे ज्यादा खाली होता है इंसान. हाँ, वो रेडियो पे आता है. एटलीस्ट यू सिट विद योर थॉट्स. सोचना शौचालय. बट राइटिंग विल रियली हेल्प. डू नॉट टेक इट एज अ बर्डन कि मेरे अगले 10 या 15 टास्क रह गए हैं. इट्स ओके, आज रह गए हैं. बट जब आप कल बैठोगे और उसको सेग्रीगेट करोगे, यू वुड नो I have capacity to do this. नताशा, वो जो रह गए ना, वो अपने में एक स्ट्रेस बन जाते हैं.
सी एक और हैबिट, आई ऑलवेज टेल इट टू माई डॉटर, बड़ी छोटी सी हैबिट है, जो हो गया उस पर टिक करो. दैट टिक कम्स एज अ कॉन्फर्मेशन, दैट टिक कम्स एज कि ओके done हो गया, correct. आई हैव डन. ठीक है. देन यू प्लान. अब ये मेरे आज के टास्क जो कैरी फॉरवर्ड हुए, लाइक यू डिड इट फॉर द पॉडकास्ट, राइट? यू प्लान, यू रिटन, ये हुआ ये हुआ ये हुआ. नेक्स्ट स्टेप के लिए this is an unsaid planning I'm doing in my head. If I will not do, my brain will tell ये तुझे करना है. So before taking any another task, my brain knows that I have to do this. So let me first finish this. Keep a target, a goal with every task. This is, I need to call up a salesperson. My ETA या my TAT is this. My TAT for a workshop is this. My last day to plan my content is this. To talk to this person, give a TAT which is achievable, measurable. Like we do it, SWOT analysis and all these things, right? अरे आप जो टैट अचीवेबल और मेजरेबल है वो एक्चुअली एक टाइम पे बहुत बड़ा स्ट्रेस था ऑफिस के अंदर. पर ऑफिस में था. लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में एज एन एंटरप्रेन्योर लेके आओगे, यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ, यू विल वर्क ट्रिपल. दैट्स अ गारंटी, अंकेश. क्योंकि हम खुद के लिए कर रहे हैं ना, तो हम और दिल से करते हैं. और जब हम और दिल से करेंगे तो वो मेरे लिए प्रेशर नहीं बनेगा. Okay, so art is something, I've done my graduation, masters, everything in arts, and then did my astrology, a lot of things. So you'll say कि आप multitasking की बात करोगी, आप तो खुद ही 50 फील्ड में हो. Yes, but when I am with you, I am with you. When I'm doing a client who needs healing, I am just doing that, keeping all the clutter back. घर में क्या हो रहा है, डॉटर क्या कर रही है, काम कैसे हो रहा है. उसका सही तरीका ये कि वो क्लटर आपका एक्चुअली बुक पे है, तो आपको सोचना नहीं पड़ा उसके बारे में. इसलिए मैंने बोला मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि जैसे सब कुछ बुक पे होता है, नोट पैड पे होता है, लेकिन फिर भी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपके दिमाग में वो चीज आ जाती है, अरे ये तो रह ही गया, ये तो करना था. और अब आप उसको एक टू डू लिस्ट और खोलते हो कि यार अब मैं बुक कहाँ ढूंढूंगा, ये तो ऑफिस में आज छूट गई तो मैंने फोन पे लिख लिया. So again, I'm messing things up. If you see, so choose your fingers to do that in a way to, instead typing, write it. That really rewires your brain. नहीं, but I'm saying कि जहाँ पे लिख रहा हूँ, जहाँ पे रेगुलर टू डू लिस्ट बन रही है, वहां पे नहीं है अब वो एक और पन्ने पे बन रही है या एक और फोन पे बन रही है. तो I'm again stressing myself कि मुझे यार ये भूल ना जाओ. और क्योंकि 3 दिन बाद तो याद आया था, उस दिन क्यों नहीं याद आया मुझे? नहीं, क्यों आपने रिव्यू नहीं करा ना जाके उस टास्क लिस्ट को. It's not only about writing. You have to review your journal. You have to review your task list. आज का मैंने दिमाग का कूड़ा निकाल के एक साइड पे रख दिया. ठीक है, सुबह सो गई, उठ गई. नेक्स्ट डे मुझे उसको रिव्यू तो करना पड़ेगा. How will I proceed and learn? And which is why the reason is कि वो 5 जो टास्क हुए, जो बाकी रह गए 10, वो रह गए. Reviewing is important. अब मैं आज एक अपने आप को टास्क दे रही हूँ. Let me chant. I'm not giving a bigger task. Okay, let's say I've started a new mantra to chant. And that's a new mantra. I don't remember it. तो अभी मैं बुक खोलती हूँ, उसको देखती हूँ, चैंट करती हूँ, and I'm not giving कि मैं 108 बारी करूंगी. I'm just telling myself मैं 11 बारी से चालू कर रही हूँ. जब मैं थोड़ी सी याद हो जाएगा तो मैं 21 करूंगी, 21 के बाद 51 करूंगी, उसके बाद 108 करूंगी. Go slow. Kaizen really helps. It's like a practical thing which Japanese follow, and I have embodied it. So I know about that. I think the easiest layman terms में पहले गाड़ी को गियर पे डालो फर्स्ट पे, फिर चौथे पे जाओ जब स्पीड कंट्रोल कर सको. राइट, एवरी डे वन स्टेप. तो एक बात बताइए कि आई मीन इट्स मोर ऑफ समथिंग दैट केम टू माय माइंड एंड आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि जब यू गो एंड टीच अ लॉट ऑफ दीज पीपल, ठीक है, दैट हैज न्यूमरस टाइम हिट मी हार्ड एंड आई it's really hard for me to actually come up with a solution. So I'm asking that solution. सबकी अपनी अपनी एक टाइमलाइंस है, उस पे वो चल रहे हैं, जिसको जब अचीव होना होगा वो तब अचीव होता है. लेकिन कुछ लोगों को होप जानने के बाद भी दे फील एम्प्टी. दे आर डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग. कुछ लोगों को अचीव ही नहीं हो रहा, स्टिल दे आर फीलिंग एम्प्टी. ऐसा साइकोलॉजिकल बैरियर क्यों हमारे दिमाग में होता है? आई वुड से साइकोलॉजिकल इज वन पार्ट ऑफ इट. स्पिरिचुअली आप अपना संचित कर्मा यानी ऋणानुबंध ऐसा करके आए हैं कि यू विल फील एम्प्टी. द वर्ड यू सेड, somebody, some people will do everything in life, still they feel empty. I'm answering that right now. कि ऐसा क्यों होता है? Because उनका खालीपन तभी पूरा होगा जब वो किसी और के लिए कुछ करेंगे. Give back to the society. बट फीलिंग आएगी कैसे? लोग कहते हैं ना दान धर्म करो, सब करते हैं लोग,
फिर भी दान धर्म परेशान तो रहते यार हैं। आप अपने घर के मेड को, हेल्प को या गार्ड को या ड्राइवर को करोगे, उनका तो वो भी नहीं मानना वही लगेगा। होता है, वो नहीं लगेगा। बट बोलता तो जाता कि आपने तो अपनी इच्छा से दान कर दिया। Correct, but that person is working for you. He'll give it back as an energy exchange. ओह, दैट्स अ गुड Doing पॉइंट। it for an unknown person, जिससे जिसके कुछ लिए, वापस नहीं आ रहा। बट खुद करना, पैसे नहीं देना। हाँ, ऑफ कोर्स। जा करके गुरुद्वारे में आपने देखा है लोग कितनी सेवा करते हैं। वेरी सिंपल एग्जाम्पल एंड द बेस्ट, मतलब रिचेस्ट से रिचेस्ट पर्सन विल गो एंड जूते हाथ में लेते हैं और माथे से लगाते हैं और फिर रखते हैं। अंदर रखते हैं। क्यों माथे से लगाते हैं? देयर इज रीजन, क्योंकि वो सामने वाला उनके लिए उनका गुरु है। वो सामने वाला एक प्योर सोल है। वो आके उन्हें गाली भी देगा तो भी वो कहेगा आत्मा नमस्ते। वो आत्मा, वो सोल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कोई भी हो, वो उनके लिए उनका इष्ट है। उससे माथे से लगाया और अंदर रखा, शुक्राना किया, ग्रैटिट्यूड। सो ये था आपके सेकंड उसका जवाब कि खालीपन को आप कैसे पूरा कर सकते हो व्हेन यू हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। तभी वो एम्प्टीनेस आपको पूरी होगी। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा आप किसी के काम आए। ये भी तो सेल्फ रियलाइजेशन अंदर से आना चाहिए ना, क्योंकि सोसाइटी तो आपको ये ये तभी समझा आएगा जब सोसाइटी भी तो आपको यही समझा रही ना कि अरे गार्ड को दे दो, अरे मेट को दे दो, वो तो तुम्हारे लिए काम कर ही रहा है, उसको भी, उसका घर भी चल जाएगा। टेल दैट दे आर देयर फॉर यू, यू आर पेइंग देम। एनर्जी एक्सचेंज एक हो ही रहा है ऑलरेडी। तो बट व्हेन यू डू इट फॉर समबडी एल्स हुम यू डू नॉट नो, जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हो, उसके लिए कुछ करोगे तो आपको दिल से भी लगेगा ना यार। और वो करते हुए आप अपने लिए भी, अपनी जिंदगी के लिए भी ग्रेटफुल होगे। जो इंसान जमीन पे बैठा है मंदिर के आगे, अगर आप जाके उसे एक पत्तल में घर का खाना बना हुआ खिलाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो कैसे खा रहा है, जल्दी जल्दी उसको मिल नहीं रहा है, धूप में बैठा है, पेड़ के नीचे खा रहा है। लेकिन वही खाना आपको डाइनिंग टेबल में मिलेगा और उसमें नमक तेज होगा तो आप गलती निकाल दोगे। उसको फर्क नहीं पड़ रहा, वो खुद हो आप इंसान नहीं, मैं जिसको हम और वो बंदा जो बैठा है, जो इंसान वो बैठा नमक है, तेज में भी बेचारा खा रहा है क्योंकि उसका पेट भर रहा है। तो जब ये रियलाइजेशन होगा तभी आप आगे नेक्स्ट पड़ाव के जिंदगी पे बढ़ोगे। तो ये आप किसी को पुश नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा ना वो खालीपन, तो ये उन व्यूअर्स के लिए जो एक्चुअली जिंदगी में कुछ ना कुछ खालीपन फील करते हैं। वेरी सिंपल रूल, वॉट एवर यू अर्न, गिव 10% टू द सोसाइटी। वो 10% आपको कैसे डिवाइड करना है, दैट्स अ चॉइस। यू वांट टू गिव इट for children, for widow, for food, for medicines, it's a choice, whatever you want to do. But आप 1000 रुपए कमा रहे हो तो उसमें से 10 रुपए तो दे ही सकते हो। ऐसे भी व्यूअर्स होते हैं जो उसके ऊपर भी तंज कस देते हैं, पर वो देने के बाद अगर सोशल मीडिया पे डाल दोगे, हाँ, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। तो अगर मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई थिंक अगेन इट्स मोर ऑफ अ सोशल एक्सपेरिमेंट दैट दे डू, दैट दे रियली वांटेड टू टेल यू कि यार तुम देखो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आई वांटेड टू टेल यू कि ऐसे बहुत सारे गरीब हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं। मैं तो कर ही रहा हूँ और मैं इसका वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी लोगों की मदद करें। आई थिंक दैट्स वेयर आई एम एबल टू रिलेट टू द थॉट कि व्हेन यू आर एक्चुअली गिविंग बैक टू द सोसाइटी, यू आर गिविंग इट टू समवन जहां से आप कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, देन ओनली यू आर फीलिंग फुल, नॉट एम्प्टी। यस एंड द पार्ट ऑफ पीपल जिनको लगता है कि यार करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उनका ना अभी ग्रीड खत्म नहीं हो रहा है। वही जो हमने इनिशियली बात करी थी, गोल एक अचीव हो गया, दूसरा करना है, दूसरा हो गया, तीसरा करना है, अभी वो एम्प्टीनेस के लेवल पे पहुंचे नहीं है। तो उनकी जर्नी है, उन्होंने डिसाइड करी है, लेट देम मूव दैट वे। इसको हम कितना भी साइकोलॉजिकली भी अगर हम इसको बात करते हैं तो there is this factor of greed which needs to be settled, that can only be settled when you achieve। और ऐसे लोगों के साथ जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा झटका होता है जहां आपको लगता है कि I have to slow down। हाँ, वो मेरे साथ हो चुका है, तो आई नो हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे कि रात में हम स्क्रॉलिंग कर लेते हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो हमारे जानकारी के भी होते हैं और बहुत सारे बहुत आई थिंक जानकारी के शायद 10 ही होंगे, बाकी सारे मटेरियल होते हैं, यूजलेस होते हैं। लेकिन वी आर अफेक्टिंग आवरसेल्व्स इन वन वे और द अदर। सो अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आवर मेंटल वेल-बीइंग, सेल्फ वर्थ, ability to stay present, how can social media actually helps? That's a good question because I don't see it helping much in a way, but yeah, whenever you're picking it up, read good content,
Don't divert yourself. And like you used it. Use it to develop connection. Use it only for work. Frankly, in my case, I am not a social media hardcore person. My team does it. But whenever I scroll it, I only use it for work. Till today, in my house, I do not know how a TV remote operates. You'll call me illiterate, but मुझे TV remote चलाना नहीं आता. AC remote जरूर चलाना आता होगा एक बटन दबा के. TV operate करना नहीं आता है. Because I choose not to engage myself into that. And social media, I choose only for work purposes. To reach out to people for cause, for a meaning. That's it. But I second your thought on remote चलाना नहीं आता. क्योंकि आई एम अज्यूमिंग जब आप ये बात बोल रहे हो तो आपके पास या तो कोई वो बड़ा सोनी या सैमसंग का टीवी होगा जिसका बहुत ही डी क्लस्टर रिमोट होता है जिसमें बहुत सारे बटन होते हैं, ये नहीं पता होता. क्योंकि अगेन एसी का रिमोट इज इजी क्योंकि उसमें हमें पता है ऑन ऑफ करना है, राइट. प्राइम का भी रिमोट इजी है क्योंकि सिर्फ 2 ही बटन होते हैं. लेकिन जब ढेर सारे बटन होते हैं तो मुझे भी लगता है ये इतने बटन कर क्या रहे. तो वो आई कैन टोटली गेट योर पॉइंट कि हाँ वो चलाना. No, मैंने टीवी कभी ऑन ही नहीं किया. नहीं, द पॉइंट इज कि यू आर नॉट वेस्टिंग योर एनर्जी इन डिफाइनिंग दैट गोल. आप कह रहे हो कि ये जब जरूरत ही नहीं तो मैं उसमें दिमाग भी क्यों लगाऊं. You know, आप मुझे आई एम गोइंग टू say a statement. You may call me mean and very rude and straightforward. बट जिसके घर का टीवी बड़ा होता है ना उसके घर में विजडम कम होती है. तो आप रूड का हुए. रूड हो गई मैं क्योंकि वहाँ किताब नहीं होगी, वहाँ टीवी होगा. हाँ वो तो होता है. तो जहाँ जितना बड़ा स्क्रीन होगा ना वहाँ वो कहते हैं ना समझदारी नहीं होगी. मैंने एक छोटा सा नो यू वेरी राइट. आई मीन अगेन आई वुड रिलेट टू दिस. सो मेरे पास जो टीवी है वो इट्स 55 इंच, नॉट वेरी बिग. लेकिन मैंने उसके नीचे ना पूरी बुक शेल्फ रखी है कि नजर तो जाए. और वहां पे नॉट जस्ट सो माय डॉटर इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स एंड शी हैज डिवोटेड हर ओन टाइम कि वो रात में पढ़ेगी. और मुझे बस गुस्सा ये आता है जब मैं सोने वाला हूं तो तू लाइट खोल के बुक पढ़ रही है. बट अगेन वो बुक्स और वो टीवी के बीच में केमिस्ट्री बस ये है कि वो टीवी कभी चलता नहीं है. सो ब्यूटीफुल. हाँ, रीजन भी वो इसलिए नहीं चलता क्योंकि उसके साथ कोई हमने सेटअप बॉक्स कनेक्ट नहीं किया हुआ है और उसको चलाना भी एक हर्क्यूलिन टास्क है. तो यू नो फाइंडिंग दैट रिमोट एवरीबडी स्केयर्ड अबाउट इट. तो प्राइम का रिमोट दबाना आसान है. देन दे चूज कि लेट्स पिक अप अ बुक एंड व्हेन वी आर सिटिंग ऑल टुगेदर देन दे कैन रीड बुक एंड वी कैन स्टिल चैट. समथिंग दैट वी डू बट इट्स नॉट अगेन समथिंग इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे. क्योंकि हम रहते चारों साथी हैं, 2 बेटियां मैं और हम पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं लेकिन वो अपनी धुन में तब भी रहते हैं. बहुत ही कम ऐसा टाइम होता है कि हम चारों अलग अलग है और फोन पकड़े बैठे हुए हैं. एंड दैट इज वेयर आई सी अ लॉट ऑफ बड़ी वेस्टेज है. आई लव इट. बहुत अच्छी बात बोली. इट इज इम्पोर्टेंट टू स्पेंड फैमिली टाइम टुगेदर. आपने द वे यू सेड योर डॉटर स्टिल रीड्स. ऑन कॉन्ट्री माय डॉटर डू नॉट रीड अ लॉट. शी इज नॉट अ रीडर काइंड ऑफ अ पर्सन. बट इनिशियली यू सेड कॉमिक्स दो. सो वी गिव अ कॉमिक्स. शी एंजॉयज रीडिंग कॉमिक्स. देन शी पेंट्स. Not necessarily reading. From reading, what I mean is away from digital content. Because digital content is taking you somewhere else. But it is fake. वो बना रहे हैं, नाटक ही है वो. Real world. हाँ, it's not a real world. तो वहाँ पे जो imaginations आ रही हैं, वो absurd भी हैं, अच्छी भी हैं, and you don't have to get a choice. Lot of competition. Exactly. Lot of comparison. Lot of it develops lot of lower emotions in your body. हाँ, jealousy होती है लोगों को, competition develop हो जाता है, and it's not healthy. Exactly. It is समथिंग. अरे वो तो वहां भी चला गया, उसकी असली जिंदगी में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता. वो चाय लेके घर में बैठा होगा लेकिन उसने पहाड़ की पिक्चर डाल दी तो पीपल आर जेलस. वो वहां घूम रहा है, वहां घूम रहा है, वहां घूम रहा है, या और कहाँ घूमने चले गए अब तुम. सो पीपल से ऐसा तो बहुत होता है. बहुत होता है. ऑफिस में बैठे हुए और फोटो आई, अरे तो अभी तो ऑफिस में था, कब चला गया, फिर पता चला वो निकल के कैफेटेरिया जा रहा है. इट क्रिएट्स बिकॉज़ विजुअल एलिमेंट वर्क्स फास्टर. करेक्ट. ठीक है. सो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ लोअर इमोशंस इन आवर बॉडी wherein our body starts getting into stress. वो फाइट एंड फ्लाइट होते हैं. अच्छा उसके संग तो ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, उसके पास तो ये भी है. एक सेल्फ कंपैरिजन क्रिएट होने लगता है. सो अगर बुक्स नहीं भी हैं, pick up a hobby, pick up an activity. You like to cook, you like to paint, you like to dance, you like to sing. Like my daughter is a singer, she sings. I do not push her. Reading नहीं पसंद तो उतनी रखो जितनी क्योंकि थोड़ी तो अब पढ़ाई करोगे तो रीडिंग चाहिए ही. But indulge yourself into other activities wherein you do not need a device per se.
because that really hampers your body. You talked about the emotional angle to it. There's an emotional suppression theory as well. हमको बोला जाता है be strong. You know, that's what the society has always talked about us and taught about us. और बहुत सारे emotions हैं जो अंदर ना दबे रहते हैं and they never come out. Thanks for taking this up. Really, I'm very grateful because I have seen this and felt this very closely. So I recently lost my mother in January. Sorry to hear that. We knew it. She had vascular dementia, and when the word dementia came, and multiple brain strokes and all. But I had to be strong. I'm the eldest. Like you said, you have to be strong. The society expects you to do that. Yeah. I did it. But kab tak? Then everybody has a breakdown. When you are stronger than as it is expected. Everybody does it. Okay? Because you're expected to do. आप नहीं भी चाहोगे तो वो responsibility unsaid आ जाती है आपके ऊपर. But when you have your breakdowns, do not run away from that. Sit with that. Sit with that to accept it. Let your brain, your emotions, your physical body. These are different bodies we have. Yep. Okay? Astral, physical, emotional, mental. Let everybody know and sit with that emotion. When we think that there's a lot of burden, lot of unsaid responsibilities, lot of things, you can't get rid of it. But you can de-layer it one by one. Yes. वो कब होगा? When you sit with it. When you identify कि issue क्या है. For that, you need to approach a counselor. Please go. You need to talk to a family member. Do that. You need to talk to a friend. Do that. You need to pick up a book and write everything. Don't want to talk to anybody. Do that. You want to learn new thing in life. Do that. Why? Because these are different layers which are unfolding at that particular time without making you realize. आपको नहीं पता चल रहा कि मैं कुछ नया लर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे इस स्टेज से कैसे बाहर आऊं. लेकिन आप धीरे धीरे उस प्रोसेस में हो. कोई भी चीज में जब हम वी आर टू मच इनटू इट, वी आर टू स्ट्रांग फॉर दैट, राइट? एंड इट इज व्हेन यू सेड बर्नआउट. हमारा बर्नआउट तो हो गई ना उसके बाद, जब व्हेन वी आर एक्सपेक्टेड टू बी टू स्ट्रांग इन सोसाइटी. एंड उसके बाद व्हेन वी सिट विद आवर थॉट्स, समझ ही नहीं आएगा दैट व्हाट इज टू बी डन. देन गो लेयर बाय लेयर. दशा, आपने कहा कि to resolve this, what if people are not resolving? Do you think कि वो overthink कर रहे हैं उसके बारे में, then they're again getting stressful, and then जो overthinking की बीमारियां हैं they come in the... वही हो जाती है ना फिर, because they're not realizing that they are not giving time to, they are not sitting with their emotions. Sitting with the emotion is really important. It's a betrayal, for example. Usually couples आते हैं, betrayal cases होते हैं. You are moving on to another person to find a shoulder. ये सबसे पहला thought आता है. हाँ. है ना? You need, because your emotional body, physical body is expecting a replacement of that previous person. Correct. Okay? So, betrayal के एकदम बाद, immediately you'll see people have affairs. अच्छा. अक्सर होता है. और आज के डेट में ये सिचुएशनशिप के जमाने में तो बहुत अक्सर होता है. ये सिचुएशनशिप भी तो अभी जनरेट हुआ है ना. जन्म भी इसका भी अल्फा के संग हुआ है. सो यूजुअली क्या होता है, आप एक रिप्लेसमेंट के लिए आपकी बॉडी, इमोशनल बॉडी, फिजिकल, मेंटल बॉडी को दूसरा रिप्लेसमेंट वहां पे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए. बट हम वो दूसरे को मूव करने की बजाय इफ वी सिट विद आवरसेल्फ और ये देखें कि प्रॉब्लम हुई कहाँ, why it didn't worked out. हम कभी why तो पूछते नहीं. What we do is तुमने किया, वो बाकी तीन और ये तो मुझे दिखते नहीं हैं. We keep on blaming. So the moment we stop blaming others, that very moment we start sitting with ourselves. When you take responsibility of your own actions. 3 fingers जो आपको देख रही हैं उसके बारे में कोई नहीं सोचता. मैं हर बार लोगों से, मतलब whenever I tell people that, you know, if you're blaming someone, then you're actually blaming thrice to yourself, but you're not looking at. There's so much of, you know, stress in form of, you know, अगर betrayal भी होता है तो
अदर देन बिट्रेल्स, बहुत से ऐसा आपकी लाइफ में ना सिचुएशंस आती हैं जो आप इमोशनली दबा के रखते हो, आप किसी को नहीं बता सकते, आप सोचते हो कि अगर बताओगे ना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। और समझेगा भी या नहीं समझेगा सामने वाला। एग्जैक्टली अगर नहीं समझा, और अगर समझा तो किस कॉन्टेक्स्ट से समझा, और नहीं समझा तो क्यों नहीं समझा, तो और वेस्ट हो गई एनर्जी, बताने का क्या पॉइंट है। अब वो तो आपके अंदर है ना, और वो कहीं ना कहीं सो कॉल्ड आपको डिल्यूजन में एक रख रहा है कि यार ठीक है, बी स्ट्रांग, सब सही है, I'll कोई tell टेंशन you, नहीं है। our brain has a tendency to create its own stories. Our brain is very creative, scientifically proven. So it has a fight and flight mode. उस मोड पे जाने के पहले वो हमें कह देता है ये हो सकता है, तो लड़ने के लिए तैयार हो जा। करेक्ट। ठीक है, इफ आई थ्रो दिस, बोलने से आपको लगा ना जैसे ही फेंके कि मैं पकड़ लूंगा, आपके ब्रेन ने एक थॉट दिया होगा। सो हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट, या मैंने बॉल फेंकी ऐसे ही करी कैच के लिए हो गई, तो आप या तो ऐसे हो जाओगे या कैच के लिए रेडी हो जाओगे। yep. आपके ब्रेन, our brain is like super brain. When it is said that is not even explored 1%, it is not. करेक्ट। तो हमारे ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है, हम पहले से ही स्टोरी बना लेते हैं। In a way it is good, but when it comes to overthinking, that is how it starts happening. Usually husband wife या boss colleague या office structures में आप दो colleagues ही हो, सेम चीज के लिए compete कर रहे हो या सेम पोजीशन पे हो, then you start getting insecure about it. Why these insecurities come? Every action gets a different reaction. अच्छा, अगले बंदे ने आपकी हेल्प के लिए ही कुछ काम किया होगा, ठीक है, they may आपको नहीं would पता, have- बट आपको लगा but वो बॉस के साथ तो है यार, पता नहीं क्या निकाल क्या के गया। कुक कर रहा हो, क्या स्ट्रैटेजी हो इसकी, या वो हो सकता है आपकी हेल्प के लिए एक लीड लेकर के आया हो, ये मेरे लिए लीड क्यों लाया है, वाई इज ही हेल्पिंग मी फॉर कन्वर्टिंग दिस लीड, क्यों, इसका कुछ बेनिफिट होगा, हो सकता है मुझे यहाँ एंगेज करके बॉस के संग दूसरे ट्रिप पे चला जाए। वी स्टार्ट थिंकिंग एक्स्ट्रा बिकॉज वी आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। The only mistake we do is that we do not enjoy the present, which is given as a gift to us. And which is why we are lonely in the crowd. Yes, which is why, because हम वही ब्लेम करने वाले फॉर्मेट में रहते हैं, तो हमें कोई अपना दिखता ही नहीं है। और ऑफिस भरा हुआ है, आपका एक सेट ग्रुप है, आप उसके साथ ट्रिप पे जाते हो, आप आफ्टर ऑफिस ड्रिंक्स क्लब्स करते हो, फिर आप घर आते हो, फिर आपको लगता है आप अकेले हो। क्योंकि सारा टाइम वहां स्पेंड करा, अब घर पे वो जिससे शेयर करना है वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका टाइम, वहां भी एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल। एवरीवेयर देयर इज एक्सपेक्टेशन, बट क्योंकि हम बैलेंस नहीं कर पा रहे, द की व्हाई वी ऑल टेक बर्थ इन दिस इज बैलेंस। वी everything needs balance. My dad taught me one thing in life, that if balance is not there, then you'll just keep on running. वो कहते हैं ना, शिव शक्ति संपूर्ण ही तभी है, मैस्कुलिन फेमिनिन यिन यांग बैलेंस सिखाता है। अगर हम बाहर उतना टाइम दे रहे हैं तो क्या हम अपना टाइम अपना घर पे भी दे रहे हैं? हम उस भीड़ में भी अकेले हैं बाहर की पार्टी में, और हम घर पे भी अकेले हैं, बिकॉज घर वाले डिस्टेंट हो गए, या फाइट हुई, या फाइट नहीं भी हुई तो उन्होंने एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करा, या वाइफ भी अपने वर्क में बिजी है, हस्बैंड भी अपने वर्क में बिजी है, बच्चे लोनली है, कमरे में वॉच कर रहे हैं, नहीं वॉच कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, या मेट्स के संग है। आई सी सो मेनी एग्जाम्पल्स, किड्स आर बीइंग ब्रॉट अप बाय हेल्प्स। Let's not even get into that क्योंकि वो that's a bigger topic. But the thing is, balance is the key. और loneliness तभी आती है एक्चुअली जब हम उस चीज को ओवरकम नहीं करना चाहते हैं। आपने ना एक इनफैक्ट आपने दो क्लासिक एग्जांपल दिए, एक तो जैसे आप यू टॉक्ड अबाउट योर मॉम, देन द सेकंड वन इज अबाउट दोज ब्रेकअप्स। यहाँ पे ना कहीं एक ऑफ कोर्स यू नो वी से कि हाँ मुझे एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का, अगर जैसे माँ भी नहीं है तो somebody कि यार मेरी जो माँ के साथ बॉन्डिंग थी वो आई वांट टू टॉक अबाउट इट। अब हो सकता है एक बंदा सोचेगा कि यार मैं क्या करूँगा सुन के यार, बिल्कुल, दूसरा सोचेगा नहीं यार आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस, आई वांटेड टू, एंड सिमिलरली गोज विद अदर एग्जांपल्स एज वेल। What is the biggest emotional mistake people do in relationship that they actually damage their mental health around it? over expectations, which And two, why do they do that? over expectations because that is a self reflection actually. If I expect you to okay, let's say आप किसी प्रॉब्लम से
कोई सिचुएशन ऐसी होती है दैट आई वुड हैव रीच्ड अर्ली और ऑन टाइम बट अंकिश इज नॉट देयर, ओके, बिकॉज आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन, आई थिंक यार ये क्या बात है, अनप्रोफेशनलिज्म है, राइट? मुझे क्या लगता, एक्सपेक्टेड था दैट यू विल बी हियर ऑन टाइम, जैसे आपको एक्सपेक्टेड था दैट आई शुड बी हियर ऑन टाइम, राइट? बिकॉज वी हैव थिंग्स टू डू अहेड. एक्सपेक्टेशन इज अ रिफ्लेक्शन. अगर मैं सामने वाले को कह रही हूँ इन अ रिलेशनशिप और इन ऑफिस दैट तुम्हें ये टास्क टैट के पहले करना चाहिए था, तो वो मेरा सेट ऑफ थॉट है, मेरा सेट ऑफ एक्सप्रेशन है कि मैं टैट के पहले करती हूँ टर्न अराउंड टाइम के, लेकिन वो बंदा कह रहा है ना मेरा तो टर्न अराउंड टाइम ये है, मैं तो तभी करूंगा. सो हमारी ही एक्सपेक्टेशन एक हमारा रिफ्लेक्शन होती है. बेसिकली द सेम थिंग, पॉइंटिंग आउट फिंगर्स. व्हेन वी पॉइंट आउट तो हम वो ही देखते हैं सामने वाले में जो हम खुद होते हैं. बट एक बात आप बताइए, आपने अगर उसको बोला कि टैट को समय से पहले कर लो, तो एज अ बॉस aren't you looking at a successor who exactly matches your energy? Yeah, but because I'm a boss, I've already seen that that person has a stair to walk on. So I need to be a person, ideally, rather than expecting being a coach. Got it. मैं वो चाहती हूँ. I am not helping that person. Exactly. I am not a coach. I am not being grateful कि उसने इतना किया है. When we are grateful, we overcome all these hassles. Yep. So when we write in the morning or at the night, we write about the whole day. Every morning, pick up 4 affirmations or 5 affirmations जो लिख सकते हो, and write for what all things you are grateful for. At the night लिखो, सुबह लिखो, कहीं भी लिखो. Like morning में I do write my affirmations and I write that I am grateful to my family, to my friends, to my helps, to my team, to my pets, to the food I eat, to my cook, everybody. So my morning first thought is compassion. Similarly to that boss and a colleague or boss and a subordinate. अगर मैं उसकी गलती निकालूंगी तो मैं एक्सपेक्ट उसके पोजीशन से ज्यादा नहीं कर रही हूँ उससे, सैलरी भी उतनी दे दो. Okay, there is always two sides of the coin. Yes. Which one is you thinking? So choose either you want to be a leader or you want to be a coach. Okay. Or a team. So in this case, person. if you're emphasizing more on कि तुझे मेरे जैसा बनना है, you're not still coaching him. You're actually emphasizing तुझे मेरे जैसा बनना है, तुझे ऐसा करना पड़ेगा. तो आप leader अभी भी बन रहे हो, but आप you're not helping him become leader is still a positive term. I'll say either being a boss or being a leader. Leader always take the team along. Correct. Boss is always bossy, right? ऐसा कर, और बेटा ऐसा करेंगे कि अगर आप इस तरीके को ऐसे अप्रोच करोगे. So have that compassion, kindness for others to understand their situation. कभी आप भी वहीं थे और नहीं भी थे तो वो बंदा किस थॉट प्रोसेस से आ रहा है. मानिए आप लेट आते और कुछ इशू हो गया होता, you would have told me. रादर मैं आते ही आप पे ब्लास्ट करती. उससे अच्छा मैं ये सोचती कि कुछ तो इशू होगा ना, अंकेश लेट आए. नहीं आए. आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ सिचुएशन दैट आई शुड हैव गिवन यू अ बेनिफिट और डाउट. And still, I mean, there's always different stories across कि नहीं आया तो मैंने क्या आपको पहले इन्फॉर्म किया कि मैं 10 मिनट लेट हूँ. हाँ, मतलब करेक्ट. नहीं, मैं तो सरप्राइज एलिमेंट की बात कर रही हूँ. लेट्स से अभी ऑफिस का बात करिए. अभी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है. वाइफ इज वेटिंग, पता है हस्बैंड ने लेट आना है रात को, ऑफिस के बाद लेट हो गया, समथिंग हैपेंड एंड ऑल, और आज बहुत लेट हो गया. तो डोर खोलते ही रादर देन ब्लास्टिंग शी कैन एक्चुअली आस्क कि सब ठीक है, कंपैशन दिखाओ. हाँ, सब ठीक है या नहीं है. वो बंदा बोले रास्ते में भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया था या कुछ हो गया था, आई वाज हेल्पिंग देम. मे बी वो ठीक है, बट एटलीस्ट गिव अ चांस टू अनदर पर्सन. I'll probably एक और चीज I'll pick up. आपका वो एक आर्ट थेरेपी एंगल भी है. So now considering कि बहुत सारा इमोशंस अंदर दबा हुआ है, निकल नहीं रहा, कैसे निकालूं? यही मैंने सेव करके रखा था ये वाला एंड में बोलने के लिए. ओके, व्हेन यू से बहुत सारे लोग होते हैं, आपके इस क्वेश्चन का एक आंसर ये भी है कि बहुत सारे लोग होते हैं बोलना नहीं चाहते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते. किससे बोले, कहाँ जाके बोले? काउंसलर के पास जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे या फ्रेंड के पास जाएंगे तो वो हमें जज कर लेंगे. वी ऑलवेज चूज अ थर्ड पर्सन ईदर और अ टेक्निक लाइक आई सेड क्रिएटिविटी और समथिंग वेयर इन वी एक्सप्रेस without using our tongue. Means without using our words.
art therapy is one of it. It can be sound therapy, it can be dance therapy, it can be music therapy, where we sing and express. You do not see, these are tools of mindfulness. Like you said, being mindful to बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो सकता. But if you like singing, why don't you take out 30 minutes and sing? Okay. Similarly, art therapy is a tool or a technique wherein we actually go through that specific emotion, heal it, express it, and find out answers on its own during the process. You do not need me for that. I will be the anchor to take you through the process. That's a process. So you can draw, you can paint, you can sing, you can garden. You can cook. You can cook. You can spend time with pets. They are the best healers. Yeah, I mean, वो तो एक अलग डिबेट है जो मेरे घर पे चल रही है, लाना है कि नहीं लाना है. But the beauty of it कि there's always a way that you can actually control your mind. You really have to strategize those things, and developing that is not a stress. Strategize is again a very technical cooperative. मैं उस पे भी आऊँगा थोड़ी देर में. हाँ. But अगर बस हम जीने की कोशिश करें, जैसे ललिता माँ ललिता सहस्त्रनाम में कहते हैं, she is playful. Just be playful. You've seen जब भी met. गीत देखिए उसमें. Just live the गीत का जिंदगी. Chill. लेकिन फिर उसका part 2 भी तो था ना. But she was never regretting that. It was her choice. She knew it was her choice. So just be Geet. Just be playful like Lalita Ma. She always... She's like playful. You do not know what is coming next. But at least ये तो पता है मैं यहाँ तो जी सकती हूँ. यहाँ क्यों ना जीऊँ? तो जो आप कह रहे थे ना, मैंने strategy word क्यों use किया? So I wanted to know the corporate reality around it. So in corporate, when we say it is difficult to manage, of course, I have lived that life. I was lucky to work with a Japanese company who used to... Oh, well, I can understand. Talk about it, and it was pretty easy for me because Japanese are very compassionate people to work with. If you have any issue in your life, they are the ones who will say, address it first. तो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट का रोल ये होना चाहिए, अगर आप घर पे खुश हो ना, घर के बाहर भी खुश रहोगे. Unless you're just running for money, then you and me are talking nothing कोई for फर्क नहीं them. पड़ता, exactly. It does not matter, right? If it is just about numbers and goals and just money, numbers भी इसलिए because then तो this is not a point. Exactly. उनकी वो स्टेज ही नहीं है अभी. Who are we to talk about it? सबकी अपनी स्टेज आती है. तो we are no one to bring about that context कि अभी स्टेज आएगी और हम बात करेंगे. नहीं. But yeah, if you really want to, in the corporate life, pick up a sport for yourself. Do any activity, maybe go back and once a week if you feel like, enjoy cooking, do that. Many men does it. Pick up any activity, like, of course, if you like dancing, you can. People feel like कि clubs जाना है, तो सिर्फ office वालों के नहीं, घर वालों के संग भी चले जाओ. See the balance. There are a lot many things attached to this. Being mindful, I've spoken about multiple tools. If you think that it is extremely stressful and you are at a burnout level, take an external help. Always take a help. तो जो आपने अभी example दिया, Don't be shy. जो आपने अभी example दिया, do you recommend that it should be a 10-minute thing that people can do if they spare 10 minutes out in the entire day just to be mindful 10 minutes of तो it? बहुत हो गए. Just one cycle of breath. Okay, like we are talking, just focus and see how your breath is working. And how are you breathing? Put one hand on your tummy. Take a deep breath. Now realize, is your tummy going in or back? If it is going in, you're breathing wrong. As in? So when you breathe in, what is happening? हाँ, मतलब when I'm breathing in तो tummy अंदर ही जा रहा है. Ideally तो आप हवा ले रहे हो तो tummy बाहर आनी चाहिए. That is the biggest mistake we do. We do not breathe in our ideal scenario because हमें fast life की आदत है. So ideally when we breathe, so सांस लो, अब conscious सांस लो. पेट फूला, chest फूला. chest फूला. पेट भी फूलना चाहिए ना, हवा तो अंदर तक जाती है. And now breathe out. तो ये relax होता है. हाँ, ये अंदर जा रहा है. हाँ, got it.
So हम the wrong सोचते ही thing. नहीं है उस Now time you से। see, आपने one cycle of breath पे focus किया, थोड़ा सा आराम मिला होगा. So this is something an exercise generally I It's an do exercise in a सोने के लिए। हाँ, very मैं बहुत relaxing. ज्यादा करता हूँ Breathing. क्योंकि जब मुझे पता है नींद नहीं आ रही तो आई थिंक काउंटिंग टिल 10 और 15 बचपन में I'm करते done. थे ना? हाँ, मैं नींद आ जाती थी And फिर। reverse counting also helps because आपका brain उसमें hypnosis में जाने वो तो लगता खैर है. शीप काउंटिंग और ये सब खैर वो नहीं, मतलब रिसेंटली दैट्स समथिंग आई हैव स्टार्टेड इन कपल ऑफ इयर्स कि एक तो 2024 में जॉब चली गई, उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है वाज नॉट क्लूलेस, तो वो एक स्ट्रेस लेवल डेवलप भी हो रहा था कि यार ये पॉडकास्ट कितना लंबा जाएगा या मुझे और कुछ भी करना चाहिए। अब जब वो रात में आप बैठते हैं देन यू आर अलोन विद योर थॉट्स, देन इट इज बिकमिंग यू नो क्लॉस्ट्रोफोबिक कि यार ऐसा लग रहा है मैं एकदम कंप्रेस होता चला जा रहा हूँ। उस समय उसे डीक्लटर करना है, उससे बाहर आना है, यू नीड टू गेट सम एयर। I generally started practicing this कि लेट गया, पैर सीधे किया and started just breathing कि दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगी तो शायद नींद आ जाएगी। So I'll give you few tools which our viewers can also do it. One cycle of breath, yes, अगर आप meditation नहीं कर सकते हैं, आप 10 minutes meditation कर सकते हैं, do it. वो भी नहीं हो पा रहा, one cycle of breath में लगता है यार कुछ हो ही नहीं रहा मेरे साथ, तो pick up योग निद्रा on YouTube. Listen to that, maybe 5 minutes, 10 minutes. योग निद्रा actually वैसे तो during the day करी जाए when you're too burned out. ठीक है, and all the offices have one place to relax. You can just sit and do a योग निद्रा also. That is also fine. That will relax your body Japanese to बहुत करते charge. हैं। हाँ, it's quick to charge. Japanese तो बाद में करें. मतलब बहुत सही चार्ज होता है It वो। is from the our परसों की studies, बात है। scriptures मेरे लिए तो tells. परसों की बात है। फैल गया और आधा घंटा आई वाज लाइक ओह क्या नींद है। उसके बाद जो एक्टिव हुआ हूँ ऐसा पता नहीं क्या क्या निपटा दूंगा उस दिन में। Yes, so it will charge you for next 3 to 4 hours. Yes, true. So दिन भर में ये कर सकते हैं, रात को आप मेडिटेशन करिए, नहीं कर सकते हैं बुक रीड करिए, नहीं कर सकते हैं ब्रेथ पे फोकस करिए। ब्रेथ इज द बिगेस्ट एंकर विच इज इन आवर कंट्रोल। वो भी नहीं कर सकते हैं, सोल फिगो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। Just put it on in one corner of your room, put it on, light a very nice scented candle, create an environment to sleep, no lights, just lie down. In some time only while listening to the frequency, because that has alpha waves, you will start getting into the लेकिन अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करके दिमाग में 10 चीजें और कर रहे हैं तो डिवाइस नहीं होना चाहिए आपके पास। नहीं, नॉट इवन डिवाइस, ओवरथिंकिंग आप यू जस्ट लाई डाउन स्ट्रेट, क्रिएट एन एनवायरनमेंट। सी सोचना बंद करो। सोचना बंद नहीं हो सकता। सॉरी टू से दैट, ब्रेन अगर सोचना एक ही समय में बंद करता है अंत में सोचना नहीं बंद हो सकता। बट दीज टूल्स रियली हेल्प टू स्लीप। ये बहुत छोटे हैं, पीपल हैव मेड कंपनीज आउट ऑफ इट, लाइक स्लीप कराने के लिए बहुत कंपनीज होती हैं, सुलाने के लिए। There are multiple different tools. Reverse counting is one of it that gets you into the hypnosis again in a state धीरे धीरे brain relax. Basically you need to put your brain on a calm and relaxing thought process. इसीलिए मैंने बोला journaling करना बहुत important है, because when you write things आपने clutter उस paper पे डाल दिया है, फिर उसके बाद आप लेट होगे तो you'll be little relaxed only. Still there are times you cannot sleep. Pick up any one छोटा mantra. Yeah, if you are in a habit of doing Hanuman Chalisa or anything, basically these things, one, it creates sound impact in your brain, and when we chant, तो loud chanting नहीं करनी है उस टाइम पे। Chant murmuring या मन में, जिसे कहते हैं मौन वाला। हाँ, मन में चैंटिंग ही ज्यादातर लोग। चैंटिंग मल्टीपल टाइप्स की होती है, एंड हर चैंटिंग करने का एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। एग्जैक्टली। बट जब हम मन में करते हैं तो इट इज कीपिंग यू काम फ्रॉम इनसाइड, एंड योर ब्रेन इज फोकस्ड ऑन नंबर्स एंड चैंटिंग, सो यू आर डूइंग द राइट उच्चारण इन योर मन। दैट इज द पावरफुल चैंटिंग व्हेन वी डू इट मन के अंदर। आई थिंक इस चीज के ऊपर विल हैव एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, बिकॉज आई थिंक दैट वुड वर्क द बेस्ट। बट कंसिडरिंग कि ये एक ऐसा इनफैक्ट नताशा टॉपिक है ना कि हम 6 घंटे भी बैठ के बात करेंगे ना तो वो भी कम है। बट कंसिडरिंग द टाइम फ्रेम, वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क यू कि अगर somebody is feeling very overwhelmed today and stuck, emotionally exhausted, what one piece of advice would you give it to them कि यार start doing this and gradually you'll overcome everything out of it? If they can write, it's perfect. Write it and burn it. Burn it. When I say burn it, you are telling your body, mind. मैंने किसी मूवी में भी देखा था।
mind and soul. Burning trains your brain in a way that it is going out of your system. Agreed. रावण को भी जलाते हैं. So fire element in your body also is activated, and it has capacity to overcome that desire or that overwhelm. जब हम हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारे इमोशंस अनस्टेबल होते हैं. यानी हमारी बॉडी की जो अग्नि है वो बहुत लोअर चली गई है, धीमी हो गई है. तो हमें उसको एक्टिवेट करने के लिए या तो एक्सटर्नल एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, या फिजिकल वर्कआउट का यूज़ करना पड़ेगा, या कुछ ऐसे छोटे मोटे टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा. राइट इट, बर्न इट. नंबर 1, यू आर टेलिंग योर ब्रेन इट्स आउट ऑफ माई सिस्टम. मैंने अपने थॉट्स निकाल दिए, बर्न हो गया है. चाहे ऑफिस का प्रॉब्लम है, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे फाइनेंसेस है, कुछ भी है. फाइनेंसेस है तो आई वुड से राइट इट ऑन अ बे लीफ. देयर आर डिफरेंट थिंग्स टू डू डिफरेंट थिंग्स. Burning is one other thing. Bay leaf, I know. People used to burn it on the stove, yes. Yeah. So, one is that. Another is do not run away from the situation. Face it. Face it. Facing your fears will actually give you ideas to handle it. And the strength as well. हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम भागते हैं, खुद से ही भागते हैं. तो अगर हम भागेंगे नहीं और हम उस सिचुएशन को फेस करेंगे लाइक अ वॉरियर स्पिरिट, तो इट इज रियली गोइंग टू हेल्प. इज इट लाइक सिचुएशन आपने जनरेट करी है तो फाइट भी आपको ही करनी पड़ेगी? आप कह लो, ऐसे कह लो, बट फाइट तो करनी ही पड़ेगी. अगर नहीं करोगे तो कोई तो विन करेगा, या तो ओपोनेंट या आप. चॉइस इज योर्स. जब वो भी नहीं हो रहा है, इतना ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो गई है, देन टेक एक्सटर्नल हेल्प. जब हम में लड़ने की शक्ति नहीं रहती, व्हेन पीपल गो इनटू डिप्रेशन, जब हमारे अंदर की फायर बिल्कुल बुझ चुकी है, तो स्ट्रेंथ, तो कैपेसिटी, जो पावर, सब खत्म हो गया है. साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली, आई वुड सजेस्ट go take help wherein you can talk and understand a third perspective, a perspective which is not coming from your family, not coming from a friend, not coming from a colleague, क्योंकि वो तो हमें जानते हैं, तो my brain knows, इसलिए ये judgmental होके ऐसा बोल रहा है. But when you go to a specialist or a counselor or a psychologist, never be shy of going to them. They are just listener. And when people come to me also as a tarot consultant or astrologer, I always think that I am looking their situation from a third person perspective. My brain is open, तो मैं solution देने लायक हूँ. For example, you don't know me, and if I say, Ankesh, I had this situation, आप उसको एक helicopter view से देखोगे. Correct. You will have capacity to give answer. बिकॉज मेरा ब्रेन स्टक है, ओवरवेल्म्ड है उस सिचुएशन के अंदर, तो मैं वो एक विशियस सर्कल में घूमे जा रहा है. इट इज नॉट गोइंग टू गिव मी एन आंसर. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट गो सीक हेल्प. दैट्स लाइक एक्सट्रीम स्टेज, जब आप एकदम स्टक ही हो जा रहे हो, आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है. जब हमारे अंदर वो फायर खत्म हो जाती है. नहीं तो यू आई हैव स्पोकन अबाउट मल्टीपल थिंग्स टू डू. Pick up anything for yourself, write, burn. That is very, very important because we generate that. You may think practical session में ये कैसी चीज बोल रही है, but doing or sitting with the moon. Sitting with the moon. Full moon circles, or sit under the moon, because that's a very calming zone. Yes. You may answer that on your own also. Our body is 80% water, 75% water. And when moon has a capacity to disturb and get the high tides in the ocean, why not a human? You will see a lot of these disturbances, all these emotional traumas, all these issues closer to full moons. That's exactly how it works with the body as well, ना कि जो tides ocean में आते हैं, वही moon आपके emotionally elements में tide लाता है. Bang on. Yeah, beautiful. So before we wind this up, this quick rapid fire round. Okay. One word that defines a healthy mind. Be with yourself. Be mindful. Be mindful. Morning routine or evening routine? Morning. Art therapy or meditation? Meditation, because art therapy is a tool. It's a tool. A habit everyone should start today. Start small. Start small. One thing people should stop worrying about. I think everything. Just surrender. A book that changed your perspective on life. Power of Now by Eckhart Tolle.
Gratitude or ambition? Gratitude anytime. हमने पहले भी बात करी इसके बारे में. What does success means to you? I'm successful when I go and help someone else. When my soul is valuable on this earth. Like, I should fulfill my purpose. One message for people silently struggling. Self-love is really important. So, unless you value yourself, no one else in this world is going to value you. Life becomes easier when we live it, when we have fun, when we enjoy, when we are playful. जो one message for people silently struggling, I completely second you on that, echo that voice, because जब you go through a betrayal, you go through a certain emotional imbalance, उस समय जब आप अपने आप को ना एकदम रिलैक्स मोड पे ये सोचते हो कि यार जरूरत ही नहीं है मुझे किसी की, अब मैं खुद करूंगा. I think that's where you bring yourself out to the world. Win-win situation. और जब तक आप सोचते हो कि नहीं मुझे तो कोई बंदा चाहिए और मैं तो, then you're actually helpless. You can't do anything. Then we are again expecting, the cycle of expectation is just rolling out. Self-love is, I am whole, I am complete, I am independent, and I am balanced. So Natasha, thank you for joining me. As again, ये mindfulness का जो session है, it's again, मैं शायद आपके साथ 6 घंटे भी बैठूंगा ना तो मेरे शायद सवाल खत्म नहीं होंगे. और हम आम जिंदगी में भी ना हम इतनी चीजों से गुजरते हैं कि हर एक लम्हा हमारे लिए क्लासिक एग्जाम्पल बन जाता है कि उसको हमें अब्जॉर्ब कैसे करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव. So I really like to thank Natasha for taking time out today and talking about such a deep meaning topic which almost it energizes me every time. मैं जब Natasha या ऐसे coaches से बात करता हूँ तो एक अलग mindset create करता है, because when they share such thoughtful insights on a topic like this that affects every one of us regardless of our profession, age or stage of life. मेरे लिए क्या अलग रहा है was the throughout this conversation is the reminder that well-being isn't something we achieve once and then move on from there. It's a practice. जैसे उन्होंने कहा कि compassionate होना बहुत जरूरी है, gratitude देना बहुत जरूरी है. It is something that built through awareness, small daily choices. Starting में हम जब बात करते हैं कि ये हमारी choice है कि हमें करना क्या है. You choose to be a good person or you choose to be a bad person, but that's again your choices. It goes down to meaningful relationships, giving ourselves permission to pause when life feels overwhelming. We often spend years learning how to build careers, businesses, and professional success, but very little time learning how to take care of our minds and emotions. Conversations like these help us bridge that gap. So to everyone listening and watching, I hope this episode encourages you to check in with yourself, whether you're a little kinder to yourself or it's a remembrance that seeking balance is not a sign of weakness. It's one of the most important investments you can make in your life. So if you're enjoying this conversation, do share it with someone who might benefit from it. You never know whose day is complete perspective gets changed, or the journey, it might impossible for them to impact or create an impact. But do share with them. And thank you for tuning into the Collaborative Canvas podcast. Until next time, stay curious, stay collaborative, and keep building what next. Thank you, Natasha. Thank you so much. Thank you so much.